So dear student, now we are going to start lecture number 2. As I have told you in my previous lecture that he is sharing experience of 1953, what happened with him. So he told that in 1953 I was seriously injured in like the Korean American War. A soldier was seriously wounded and lying outside the road and waiting for the stretcher. He didn't want to live, he wanted to die. Now why he wanted to die? Because he told that his wife and daughter has been killed in an accident. His wife and daughter has been killed in an accident, or he said that it was a murder. We will discuss later on. And he wanted to die. He was waiting outside for a stretcher and the pain was severe. At that time, a girl like that. Now let's see from the textbook what happened later on. Page number 5, paragraph number 1. The pain was pretty bad. I guess I fainted. I might die. When I came to, there was a Korean girl bending over me. She was about 14 years. Now 14 years, Korean girl, she was bending over him, and not pretty of course, but friendly, brown eyes and long black plaits hanging in front of her shoulder like a kid's. Later on, she didn't say anything, she just smiled. Now little girl, she was bending over him and she smiled, and I smiled back. Some busy bodies chased her away, and then the ambulance came up and I was jolted for a mile hospital. The pain was much worse, but I could bear it now. I didn't wanted to die now. Now see, previously wanted to die. In American Korean War, he was wounded and bad pain and he was seriously injured, waiting for the stretcher, wanted to die. But suddenly, the Korean girl's smile has changed his mind. And 14 years Korean girl's smile has changed his mind. He said that I wanted to live now. I wanted to take revenge from a lady because his wife and daughter has been murdered. He wanted to take revenge from the lady who murdered like his wife and daughter. So it was just for a moment or two she and I meet. We shall never meet again. But it's totally changed my mind. Now what he decided after that 2.5 minute casual meeting, he said that it made me realize that what my daughter would have been like if she had lived. Now that is the important point. Just note it down. उनको अपनी बेटी की याद आ जाती है कि अगर वो ज़िंदा होती तो इस वक्त देखने में कैसी होती. उसकी एज भी इस लड़की की तरह 14 साल की होती. उसके जहन में ख्याल आता है कि अब मैं बदला लेना चाहता हूँ उस लेडी से जिसने मेरी वाइफ एंड डॉटर का मर्डर किया. नाउ ही वांटेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम दैट लेडी. सो उसने अपना एक जहन बना लिया. नाउ लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. आई एम गोइंग टू रीड. दे विल आस्क यू इन MCQs in exam. How they will ask you? Vengeance is not wickedness. It is not wicked to punish the evildoer. Now when the conversation starts between he and she, he say vengeance is not wickedness. It is not wicked to punish the evildoer. कह रहे हैं बदला लेना बुरी बात नहीं है. ही कह रहा है अगर आपके साथ कोई इविल डूअर है, कोई बुरा करता है, कोई मर्डर, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, आप बदला ले सकते हैं. बदला लेना कोई बुरी बात नहीं है. जब ही ये कहता है तो उसके बाद व्हाट रिप्लाइड शी सेड वेंजेंस इज माइन सेड द लॉर्ड. खुदा कहता है बदला लेना मेरा काम है, ये आप मुझ पे छोड़ दो. नाउ व्हेन द कन्वर्सेशन स्टार्ट बिटवीन ही एंड ही सेड दैट वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ माय वाइफ एंड डॉटर. शी सेड वेंजेंस इज माइन सेड द लॉर्ड. खुदा कहता है बदला लेना मेरा काम है. नाउ ही सेड आई डोंट बिलीव इन दैट स्टफ आफ्टर व्हाट हैपेंड टू माय लिटिल गर्ल एंड टू माय वाइफ. ही जो है इसकी बात नहीं मानता. वो कहता है जब मेरी वाइफ और डॉटर के साथ जो कुछ हुआ, उनका जैसे मर्डर हुआ, उसके बाद में इस बात में यकीन नहीं रखता कि बदला खुदा लेगा. आई विल टेक माई रिवेंज. वो आदमी एक डिसाइड कर लेता है नाउ आई विल टेक माई रिवेंज फ्रॉम द लेडी हु हैज डन मर्डर ऑफ माई वाइफ एंड डॉटर. सो नाउ लेट्स ओपन पेज नंबर 6. पेज नंबर 6, फर्स्ट पैराग्राफ. In between first paragraph, there is very important line written. Underline that line. They will give you an exam.
from the MCQ's point of view, is the turning point of the story. So I am going to read it, important line, just note it down and underline it. When she moves away from the suitcase, it appears that she has tucked the label under the flap so that it is no longer visible. Now वो लेडी क्या करती है, जब कन्वर्जेशन चल रही होती है, वो आदमी जब कहता है मैं रिवेंज लेना चाहता हूँ, बदला लेना चाहता हूँ उस लेडी से, वो लेडी क्या करती है, शी टक द लेबल अंडर द फ्लैप, जिस लेबल पे नाम लिखा होता है मिसेस जूडी ओकेंडम, उनको लगता है कहीं ये आदमी ये नाम देख न ले और उन्हें कुछ पता न चल जाए. दैट्स वाई शी टक द लेबल अंडर द फ्लैप, वो लेबल को छुपा लेती है, हालांकि वो आदमी देख लेता है, बट ये मिसेस ओकेंडम, शी को पता नहीं है कि ये आदमी उसे देख लेता है लेबल को या नहीं, और शी को ये ज़हन में होता है कि इस आदमी ने ऐसा कुछ नहीं देखा. दोनों जो है सस्पेंस रखते हैं, बिकॉज आई टोल्ड यू दिस इज़ अ मेलोड्रामा एंड इट्स अ सस्पेंस, समटाइम टेंशन बिल्ड अप, समटाइम रिलैक्स. सो इस स्टोरी में इसी तरह ही चलता है. नाउ उसके बाद देखें क्या होता है. नाउ अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम द टेक्स्ट, पेज नंबर 7. You know what I mean, all right. She murdered my wife and daughter. Now he is saying to she murdered my wife and daughter. Now murdered. So what she said, she was not convicted of murder. She was not even charged with murder. कह रहे न तो उसके ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम था, न ही उसको मर्डर की सज़ा हुई. No, they called it manslaughter, but you know what I call it? I call it murder, planned, deliberate, heartless, cruel murder. Now he is saying that मैं उसे planned, deliberate, heartless, cruel murder, मतलब जालमाना तरीके से किसी को मारना, जानबूझ के मारना, प्लान करके मारना, सोच समझ के मारना, मैं इसे मर्डर ही कहूँगा. हालांकि अदालत में उन्हें उसको मर्डर नहीं कहा गया था, उसको एक्सीडेंट कहा गया था, और उस लेडी को एक्सीडेंट की सज़ा हुई थी. नाउ ही इज़ नॉट सेइंग दैट इट्स एन एक्सीडेंट. वो जो है ही के जहन में ये होता है कि ये एक मर्डर है. लेट्स सी क्या सच है क्या झूठ है. नाउ उसको आगे क्लियरिफाई किया जाता है कि आइदर इट वाज एन एक्सीडेंट और मर्डर. एक्सीडेंट और मर्डर में फ़र्क होता है. क्या फ़र्क होता है? मर्डर जो होता है आइदर वी प्लान, सोच समझ के, जानबूझ के, एक इंटेंशनली कोई काम करते हैं. एक्सीडेंट, इन एक्सीडेंट ऑलवेज देयर इज अ चांस, सडनली कोई मिस्टेक हो जाती है, लेटर ऑन वी रियलाइज दैट इट वाज एन मिस्टेक. सो उसमें जो है इंसान जो है कोई गलती हो जाती है, जो उसको बाद में रियलाइज़ होता है कि मुझसे ये गलती हो गई, ये एक्सीडेंट हो गया, जानबूझ के नहीं किया. ये एक डिफरेंस है. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड. So it is true, no, yeah, that she was driving 50 miles an hour in a built-up area. She pulled out to overtake a bus in a blind man, and she saw herself running slap into the lorry coming the other way. She had a choice. She could ram the lorry and kill herself, or she could swear on the pavement and kill two innocent pedestrians. So she didn't hesitate. It was her life or death. She mounted the pavement, and she is alive today, and my wife and little girl are dead. Now Mrs. Ockendam, she was driving with 50 miles per hour, with a speed of 50 miles per hour in a built up area. वो बड़ा स्पीड से कार चला रही थी, सडनली सामने एक लॉरी आ जाती है. मिसेज ओकेंडम, शी जो लेडी थी, उसके कंट्रोल में नहीं होता है कि आइदर टू हिट विद द लॉरी और कार को उस रोड पे ले आए जहाँ पे लोग पैदल जा रहे होते हैं. इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ, मिसेज ओकेंडम ने क्या किया, उस गाड़ी को उस लॉरी से नहीं टकराया. उसने जानबूझ के अपनी जो कार थी उस रोड पे ले आई जहाँ पे ही की वाइफ एंड डॉटर जो पैदल जा रहे थे, और उनको ये जहन में नहीं था कि इस डायरेक्शन में गाड़ी आ सकती है कोई. तो नाउ व्हाट शी डिड, शी किल्ड द वाइफ एंड डॉटर ऑफ ही, एंड नाउ शी इज अलाइव टुडे, एंड वाइफ एंड डॉटर ऑफ ही आर डेड. Another important point, he said that she had been to a cocktail party and she was drunk, and she was driving fast. One of her rodents had and weighed her 5 pounds. She wouldn't
from Stanthorpe Cross to the coast under 15 minutes. You know the road, you know the distance, you know the bends and blind corner and the traffic on the road. You know can't be done reasonably in much half an hour. So you can't tell me it was a deliberate murder. Now स्टैनथ्रॉप क्रॉस से कोस्ट तक जाना 15 मिनट में मिसेस ओकेंडम कह रही मैं क्रॉस कर दूंगी, और उसने शर्त लगाया था कि जो डिस्टेंस है, और एक्चुअली द डिस्टेंस वाज अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर डिस्टेंस. उसने ड्रंक किया हुआ था और उसने जो आवारा लोग होते हैं उनसे 5 पाउंड की शर्त लगाई हुई थी कि आई विल कवर दैट डिस्टेंस विद इन 15 मिनट. अप्रॉक्सीमेटली द डिस्टेंस वाज हाफ एन आवर बिकॉज जो रोड जिस तरह के था इट वॉज नॉट पॉसिबल टू कवर दैट डिस्टेंस विद अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट. सो मिसेस ओकेंडम ने क्या किया, लेटर ऑन जब वो जिस तरह ड्राइविंग करी थी, एक रैकरेसली ड्राइविंग थी और उससे एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट नहीं कह सकते हम, इट वॉज अ मर्डर. और शी ने ये जो कुछ भी किया इसकी वजह से वाइफ और डॉटर ही जो उसकी उनकी डेथ हो गई. नाउ लेट्स सी पेज नंबर 8. First paragraph. Mrs. Judy Oquendam meet my wife and daughter for one split second and she crushed the life out of them. Within only 1 second she crushed the life out of them. मिसेस ओकेंडम ने कह रहे हैं 1 सेकंड में मेरी वाइफ और डॉटर की जान ले ली, और वो उनके लिए स्ट्रेंजर थे, वो आजकल जिंदा है. मेरी वाइफ और डॉटर उनकी डेथ हो चुकी है. वांटेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम द लेडी. और क्लियर पॉइंट ऑफ उसने बता दिया कि ये एक मर्डर था. उसने शर्त लगाई हुई थी, उसने ड्रंक की हुई थी, और ये पॉसिबल नहीं था 15 मिनट में डिस्टेंस तय कर लेना, और उसके बाद उसने मर्डर किया. अब मैं उससे रिवेंज लेना चाहूँगा. नाउ सी शी अपने डिफेंड में क्या कमेंट कर रही है. नाउ लेट्स डिस्कस. हर काउंसिल टोल्ड हर टू से शी डिडंट सी देम. He made a great point of it. That's why she got away with only 18 months in a hole. Mrs. Oquendam was very sharp lady. उसने अदालत में क्या कहा, सिर्फ एक सेंटेंस कह के अपनी जान बचा ली. I saw them afterward. कह रहे हैं मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, मैंने पहले नहीं देखे, गाड़ी जब टकरा गई बाद में मैंने उनको देखा कि मेरी गाड़ी के आगे आ गए अचानक. इट वॉज एन एक्सीडेंट. और इसी पॉइंट की वजह से, पैसे की वजह से, वेल्थ की वजह से मिसेस ओकेंडम को सिर्फ 18 महीनों की सज़ा हुई, और उसके बाद वो आज़ाद हो गई. फिर उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल इस तरीके से एंजॉय करना शुरू कर दिया. सो इट मीन्स ओनली 18 मंथ इन प्रिजन फॉर 2 डेलिब्रेट प्लान एंड हार्टलेस क्रूअल मर्डर. वो आदमी इस बात के ऊपर बिलीव नहीं करा कि दैट पनिशमेंट इज़ नॉट इनफ फॉर 2 मर्डर. ओनली 18 मंथ इन अ गोल इज़ नॉट इनफ. आई वॉन्टेड टू टेक रिवेंज. तो वो आदमी ने डिसाइड कर लिया ये इनफ नहीं, मैं बदला लेना चाहता हूँ. नाउ स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ व्हाट हैपेंड, आगे देखते हैं किस तरह रिवेंज लेता है, क्या करता है, और मिसेस ओकेंडम अपने आप को कैसे डिफेंड करती है. नाउ वी विल डिस्कस इन माई कमिंग लेक्चर नंबर 3. थैंक यू फॉर लिसनिंग. Thank you.